Good morning, students. After coordination compound, our next chapter is D and F block elements. Okay, in a periodic table, D and F block elements are present between the S and P block elements. Clear? Those elements in which the outermost electron entered in D subshell known as D block elements. Okay, from S, P and D and F, these are the subshells of their shells. So when the outermost electron is entered in D subshell, that electron is entered in D subshell, so it's known as D block elements. Clear? The another name of D block element is transition metals or elements. Clear? They are also known as transition elements or transition metals. Why they are called transition elements? Because the electron is transit from one D electron to second D electron. Okay, that is known as DD transition. Electron is jump from D orbital to another D orbital. Okay, that's why that is known as transition elements. Here is one question: why zinc, cadmium and mercury are not transition elements but they are D block elements? Zinc, cadmium and mercury are not transition elements but they are D block elements. पहले आप इसका आंसर सुन लेना, फिर इसको अपन समझते हैं. Because they have completely filled d orbitals. Okay, because they have completely filled d orbitals, first, second, third and fourth. Okay, if all d orbitals are completely filled, all have 10 electrons, then how it is possible to transit from one orbit to another orbit? That is not possible to transit one orbit to another orbit. So these three elements are not transition elements, but their outermost electron is entered in d subshell. That's why they are called d block elements. Clear? Now, d block elements are arranged in the following ways. D block elements are present between 3rd to 12th group. That means total 10 groups are there from 3rd to 12th group, and the periods are from 4th to 6th, 4th, 5th and 6th. Mainly they are present in 4th, 5th and 6th. Clear? In 4th period, the elements are present in left to right. In 5th, they are present in left to right, and 6th, they are present in left to right. Clear? Listen carefully. Which electrons are present here? अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी एलिमेंट का नाम नहीं पता है तो या तो आप बुक में से देखिए, या फिर मैं बोल रहा हूँ उसमें से उस वीडियो को रोक कर उसका नाम सुनकर उसके पास में आप लिख लेना, अपने नोट्स बनाओगे उस समय. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम. लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, gold and mercury. These are the D block elements in first transition series, that is known as first transition series. That is a first transition series. This one is a second transition series, and sixth is a third transition series. First, second and third transition series. Clear? The general electronic configuration of these elements are n-1, d1 to 10, ns1 to 2. यह d ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. Now the properties of transition metals. What are the properties of d block elements? First property is atomic size. From left to right,
When we goes to left to right, atomic size continuously decreases due to increase in effective nuclear charge. ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाओगे, एटॉमिक साइज छोटी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहाँ बट वर्ड क्यों आया? बट द एटॉमिक साइज ऑफ 11th and 12th group elements slightly increases due to the electronic repulsion of 9 and 10 electron in copper and zinc. बट को मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ. देखो आप देखिए, स्कैंडियम से हम कहाँ गए, लेफ़्ट टू राइट गए. तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, छोटी होती जा रही है. ठीक है, तीनों सीरीज़ के अंदर, तीनों ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है. जैसे अगर जिंक की, स्कैंडियम की एटॉमिक साइज अगर ये है, ठीक है, तो जिंक की एटॉमिक साइज ये हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है. ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. बट अब देखो क्या होता है कि डी सबशेल तो एक ही है. इस डी सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का आया, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. तो जिंक तक पहुँचते पहुँचते इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं. लेकिन इस कोबाल्ट और आयरन और कोबाल्ट के बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्शन इंक्रीज होता है. ओके, दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है. कहाँ से? कोबाल्ट में, निकल में, कॉपर में और जिंक में. इसकी वजह से आफ्टर कोबाल्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेज. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, मतलब कोबाल्ट तक तो एटॉमिक साइज छोटी होती जा रही है, फिर कोबाल्ट के बाद में हल्की सी बढ़ गई एटॉमिक साइज. तो आफ्टर दी कोबाल्ट एटॉमिक साइज हल्की सी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, ऐसा इन तीनों के अंदर होगा. इनमें भी क्या होगा, यहाँ तक रूथीनियम के बाद में एटॉमिक साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसमें ऑस्मियम के बाद में एटॉमिक साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी. तीनों के अंदर ऐसा ही होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट के बाद में हम बात करते हैं अप टू डाउन. देखिए, अप टू डाउन में क्या होगा, फ्रॉम अप टू डाउन. व्हेन वी गो टू फ्रॉम फर्स्ट to second tangent series, the atomic size increases due to the increases number of shells, but the size of second and third tangent series approx same. इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो मैं बात लिखी हुई है मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, इन दोनों की साइज़ में क्या होगा, डिफरेंस है. व्हेन वी गोज टू फ्रॉम अप टू डाउन दी एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. लेकिन सेकंड और थर्ड की जो एटॉमिक साइज है ना, वो अप्रोक्स क्या है, सेम है, उनकी साइज में इंक्रीज नहीं हुआ है. अब फ्रॉम अप टू डाउन जाने पर इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. देखिए इसमें क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, व्हेन वी गोज फ्रॉम अप टू डाउन इन डी ब्लॉक एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज अप्रोक्स सेम. ओके, बिकॉज के बाद में आप चाहो तो लिख सकते हो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. बिकॉज 14F इलेक्ट्रॉन्स enter before third series, as the number of proton also increases the nucleus, so effective nuclear charge increases, and therefore the size of the third series is not increases, and it is known as lengthenoid contraction. इसी को हम कहेंगे lengthenoid contraction. ठीक है, क्या होता है देखो इसके अंदर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, इसके अंदर आपके, ये मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ. ये वाली आपकी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो यहाँ नीचे आ रही है ना. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, जो एक और इसके साथ नीचे आ रही है. तो इन दोनों की साइज में क्या हुआ, इंक्रीज हो गई. लेकिन आप इसको देखो कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की अप्रोक्स साइज क्या हो रही है, सेम हो रही है. तो इसका रीज़न क्या है, अगर हम थर्ड में देखें तो लैंथेनम के बाद में आता है हॉफनियम, HF. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप देखना बुक खोल के, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, इसका है 72, इसका 72 है. तो इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, वो कहाँ चले गए, F ब्लॉक में चले गए.
ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, अब जैसे मान लो 37 के बाद में 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, अब कौन आ गया 72। तो इस हॉफनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आगे आ रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स में 14 इलेक्ट्रॉन पहले से एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में, इन सभी के न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी एंटर कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इन सभी एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, और किसके बराबर हो जाती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बराबर हो जाती है। और वो कौन सी है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड वाली मतलब इट्रियम से लेके और कैडमियम तक, इसके बराबर हो जाती है किसकी, लेंथेनम और मरकरी वाली सीरीज की। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द साइज एटम एंड वैल्यू, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की होती है। The value of 9th, 10th and 11th, 9th, 10th and 11th group are higher than the other due to their smaller atomic size, ठीक है। इनकी थोड़ी सी क्या होती है, हायर होती है अदर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हायर ड्यू टू देयर हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। देखो क्रोमियम का होता है 24, कॉपर का होता है 29। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे गेन कर लेते हैं, ये एस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 4s2 3d4, ठीक है। तो यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है तो हो जाता है D5। तो D5 होने के कारण इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, हाफ फील्ड का हो जाता है दोनों का, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है स्टेबल होने के कारण। मेटेलिक करेक्टर, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग मेटल, दे शो BCC एंड FCC क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आएगा, उसमें अपन देखते हैं उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है। Those elements which have maximum number of unpaired electrons in free state, they combine with other element to form the strong metallic bond. metallic bond बनाने के लिए क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे मान लो इसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसी के दूसरे एटम में भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। Oxidation state, transition elements show variable oxidation state, okay, that is a very important property of d block element, they show variable oxidation state, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो, ठीक है। यहाँ देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, मैंने जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखे हैं। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7 तक, ठीक है। उसके बाद में जिनके नीचे में अंडरलाइन कर रखा है मैंने, है ना, दैट इज़ अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स। शो तो ये इतनी सारी करेंगे +2 +3 +4 +7 तक, लेकिन स्टेबल कौन सी होगी, जिनके नीचे मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। स्कैंडियम एंड जिंक शो +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम केवल शो करेगा +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट और जिंक शो करेगा केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी इसके अलावा कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। when metal is when metal is in low oxidation state, it form ionic bond only. On increasing oxidation state कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी उनकी कोवलेंट करेक्टर बढ़ते जाएंगे, और जितनी कम होगी आयोनिक ऑक्सीजन स्टेट उतना ज़्यादा वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा अदर हेलोजन एटम्स के साथ में, ठीक है। अब एक यहाँ लाइन लिखी हुई है कि इंक्रीजिंग इन स्टेट लीड्स टू डिक्रीज इन बेसिक करेक्टर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी बेसिक करेक्टर कम होते जाएंगे और एसिडिक करेक्टर बढ़ते जाएंगे। या मैंने Mn के कंपाउंड लिए हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, V2O3 Mn2O3 MnO2 CrO3 और MnO3 और Mn2O7। इन सब के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी कितनी आ रही है, देखो आप +2 +3 +4 +5 +6 और +7, +5 नहीं है, +6 और +7। सो व्हेन वी गोज टू दिस साइड, the oxidation state is increases from +2 +7। तो ये क्या है, बेसिक, ये क्या हो जाएगा आपके बेसिक है, ये न्यूट्रल हो गया, ये स्लाइटली एसिडिक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। सो ऑन इंक्रीजिंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज एंड बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Next is catalytic property. Most of the D block elements are used as a catalyst. S और P ब्लॉक के कंपेरेटिवली D ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ज़्यादा कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं,
ठीक है, उसका रीज़न क्या है? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल्स, n-1 का मतलब क्या हुआ, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, थोड़े बहुत खाली रहते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर responsible for the catalytic property, and they also provide the surface area for the reactant molecule which are adsorbed on the surface of a catalyst। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की सरफेस है, इसके ऊपर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत सारे घूम रहे हैं इसके पास, ये सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और एड्जॉर्ब होने के बाद में जब वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद में वो इसकी सरफेस से अलग हो जाते हैं, डिजॉर्प्शन हो जाता है, और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट है, ये इसकी सरफेस पे जाके क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए, चिपक गए, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और फिर इसकी सरफेस से अलग होकर और ए बी एक अपना खुद का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ये कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, देखो, दीज आर द केमिकल रिएक्शन इन विच निकल, आयरन, प्लेटिनम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। किसकी तरह वर्क कर रही हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रही हैं इन रिएक्शंस में। कोई भी दो रिएक्शंस आप याद कर सकते हो, चार भी कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स एंड देयर सॉल्यूशन आर कलरफुल, और उसका रीजन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक विच नोन एज अ डी डी ट्रांजिशन। इनके एलिमेंट जो हैं वो एक ही डी ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जंप करने के बाद में। ये आपने CFT और VBT में देखा था, तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। एंड ड्यू टू दी डी डी ट्रांजिशन दे शो कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर किसी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कलर्ड और मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंटम को शो किया जाता है म्यू से, और मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है ये म्यू इक्वल टू √NN+2। ठीक है, इसकी यूनिट होती है BM, बोर मैग्नेटॉन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाएगी, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयंस। इनकी मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Fe+2। Fe+2 का होता है 3d6, 4:3d5, 4:3d6 होता है, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। Fe+3 का होता है 3d5, ये आपने डी ब्लॉक में इन इलेक्ट्रॉन्स को भर भी दिया। भरने के बाद आपने देखा कि Fe+2 में तो n की वैल्यू 4 आ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज n। यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो आप 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको आपने फॉर्मूले में रखा, एक की वैल्यू आ रही है 4.89, एक की आ रही है 5.91। दैट मीन्स Fe+3 शो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम। तो किसी भी आयन का आप मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। n पहले फाइंड आउट करना, उसमें ऑर्बिटल्स में डी ब्लॉक में भरने के बाद में। एलॉय फॉर्मेशन, द atomic size of the elements of first transition series is approx same. So in a crystal lattice these elements are combined with each other frequently and replaced by the other elements similarly to the form of alloys। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके जो एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इनकी एटॉमिक साइज अप्रॉक्स क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जब इनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद में ये कंबाइन होते हैं तो इनके जो एटम्स हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं, साइज सेम होने के कारण क्रिस्टल जो बनता है वो फिट या एकदम ज्योमेट्रिकल बन जाता है ना। जैसे अगर मान लो किसी एटम की साइज इतनी बड़ी हो, उसको आपने छोटे एटम के साथ में एलॉय का फॉर्मेशन किया, तो एक बार इतना बड़ा आएगा, फिर छोटा आ जाएगा, फिर और छोटा आ जाएगा, फिर बड़ा आ जाएगा, तो क्रिस्टल जो बनेगा वो एकदम परफेक्टली नहीं बन पाएगा। तो एटॉमिक साइज इनके सेम होने के कारण इनके क्रिस्टल परफेक्ट बनते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म मिलते हैं। दैट्स वाई दे नॉट फॉर्म द परफेक्ट एलॉयज। स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही फॉर्मेशन करते हैं इसका। Interstitial compounds, when the crystal forms of d block elements are arranged with some small size of element like carbon, hydrogen, nitrogen and boron, okay, which entered in interstitial size are known as interstitial compounds। कहने का मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो एटॉमिक अरेंजमेंट है मान लो वो इस तरीके की है ना, इनके बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है, इंटरस्टिशियल गैप नज़र आ रहा है। अगर इस इंटरस्टिशियल गैप को छोटे एटम्स के थ्रू भर दिया जाए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन, इन एटम से इनकी एटॉमिक साइज को भर दिया जाए, जो यहाँ मैं कर रहा हूँ क्लिक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन से इनको भर दिया जाए, तो क्या होगा, भरने के बाद में ये हमने इसको यहाँ भर दिया, तो देखो इनकी जो गैप थी वो पूरी भर गई,
ऐसे अगर पूरे क्रिस्टल को कर दिया जाए तो इससे बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या बनेंगे इससे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और इससे होगा क्या फ़ायदा हमको? देखो, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, दे आर नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मतलब ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट नेचर होगी। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंपेरेटिवली इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उनके बीच के गैप को कवर कर दिया जाए तो, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। डी ब्लॉक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत सारा पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, अभी जितना है वो उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोज एलिमेंट्स इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल, डी सबशेल में एंटर किया तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसका, इनका n-2 F1 to 14 n-1 0 n-1 D0 और ns2। ठीक है, जैसे आपने ऊपर डी ब्लॉक का पढ़ा था, दोनों का आपको कंफर्म याद रखना है। ये डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो 58 से स्टार्ट होंगे और 71 तक होंगे। आपको फर्स्ट एक 7th नंबर का जिसका कॉन्फिगरेशन 4f7 होता है, यानी कि 7th इलेक्ट्रॉन जो हाफ फिल वाला होगा, और एक लास्ट, इसको आपको लर्न रखना है। इन तीनों को तो लर्न करना ही है, उसके अलावा आप बहुत सारे लर्न करो तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। इन तीनों को तो आपको लर्न करना ही है। ठीक है, ओके।